सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। Hello. Now I think I am audible. Okay. यस सर, यस सर। प्रॉब्लम हो रहा था इसलिए साउंड नहीं आ रहा था. Okay. Today's topic is the one-dimensional array and two-dimensional array. Before I discuss the array, first we say what is array in data structure. Okay. So array is a data structure for storing more than one data item that has a similar data types. Okay. The item of an array are allocated at adjacent memory location. These memory allocation are called element of that array. And array mainly we can say array is a structure where we store the same data type. Okay. An array is a collection of homogeneous means same data type item that store in contiguous memory location. Example, if an array is a type of integer, it can only store integer element and cannot allow the element of other types of such as double, float and character. ये just what is an array. Next हम लोग जो डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वी डिस्कस arrays operation. Previous class we told what is the operation of an array: transverse process, insertion, deletion, search and update. These types are operation performed in array. Next, types of array. The most important parts of today's topics is types of array. There are mainly three types of array we are discussed, but two types of array are most important. One is one-dimensional array and another is 2D dimensional array. Two-dimensional array. Okay. A one-dimensional array is also called a single-dimensional array, where the element will be accessed in sequential order. These types of array will be accessed by script of either a column or index. One-dimensional array जो है वो either column और index में वो access होगा, ठीक है. So in other way we can say array is a data structure that is used to store variables that are of similar data types, contiguous location. The main advantage of the array is random access and cache friend lines. Okay, there are mainly two types, one-dimensional and two-dimensional. One-dimensional array में क्या होता है, इसमें एक रो और एक कॉलम, हम लोग जो चूज करेंगे वो either रो और either कॉलम, वो डेटा टाइप हम लोग एक्सेस करेंगे. समझो इंटीजर 2, 6, 4, 5 either रो और either कॉलम, तो एंड सेम डेटा टाइप हम लोग वहां पर स्टोर करेंगे एरे में. एंड 2D एरे क्या है? When the number of dimensions specified is more than one. समझो हम लोग अगर if we discuss 3x3 matrix or 5x5 matrix, अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो उस वहां पर हम लोग जो एरे यूज करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे टू डायमेंशनल एरे. ओके. वन डायमेंशनल एरे में आइदर कॉलम यूज होता है और क्या यूज होता है, रो. एंड 2D एरे जो होता है वहां पर क्या होता है, मोर देन वन कॉलम और रो वहां पर इंडिकेट होता है, ठीक है. When the number of dimensions specified is more than one, then it is called a multi-dimensional array. Multi-dimensional arrays including 2D arrays and 3D arrays. Okay. So if so we discuss what is one-dimensional array in the
what is one dimensional array? ठीक है. So what is one dimensional array? A one dimensional array is a structure collection of component often called array element that can be accessed individually by specifying the position of component with a single index value. ये array तो पहले तुम लोग पढ़े हुए हो, इसलिए array में एक शॉर्ट तरीके से डिस्कस कर रहा हूं और जो मेन पॉइंट है वो मैं बोल रहा हूं. ठीक है. वन डायमेंशनल एरे में क्या होता है? इट इज ए लिस्ट ऑफ वेरिएबल ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स. अगर हम लोग वन डायमेंशनल एरे में कुछ पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अगर वो हम लोग डिस्कस करेंगे तो क्या होगा? वन डायमेंशनल एरे इट इज ए लिस्ट ऑफ वेरिएबल ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स. अगर इंटीजर होगा तो इंटीजर, फ्लोट होगा तो फ्लोट, जो भी होगा वो सिमिलर डेटा टाइप का होगा. हम जो इंटीजर 2, 4, 6, इंटीजर, फ्लोट, इंटीजर जो भी एरे होगा वो सिमिलर डेटा टाइप हम लोग उसको डिफाइन करेंगे. It allows random access and all the element can be accessed with the help of their index. Okay. It one dimensional array allow random access and all the element can be accessed with the help of their index. And in one dimensional array the size of the array is fixed. In two dimensional array मतलब 2D एरे और 3D एरे, इसमें साइज क्या होता है वो फिक्स्ड नहीं होता मल्टी डायमेंशनल एरे में. लेकिन इन वन डायमेंशनल एरे द साइज आर फिक्स्ड. ओके. एंड कॉन्सेप्चुअली यू कैन थिंक ऑफ वन डायमेंशनल एरे as a row where element are stored one after another, like data type, array name, size. Num is an array of type integer which can only store 100 element of type integer. Temp is an array of type float, temperature, which can only store 20 elements of type float. Okay. So in one dimensional array इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट इज ए लिस्ट ऑफ वेरिएबल ऑफ सिमिलर डेटा टाइप. एक पॉइंट है. सेकंड क्या होता है? इट्स अलाउ रैंडम एक्सेस एंड ऑल द एलिमेंट्स कैन बी एक्सेस्ड विद द हेल्प ऑफ देयर इंडेक्स. इंडेक्स में जो है उस इंडेक्स से किस टाइप का एरे वहां पर डिनोट किया है वो एक्सेस कर पाएगा. The size of array is fixed in one dimensional array. Okay. For a dynamic size array, vector can be used in C++. Okay. And representation of 1D array, अगर हम लोग 1D array का रिप्रेजेंट करें तो एक बॉक्स लेंगे. एक बॉक्स में उसमें हम लोग सिमिलर जो डेटा टाइप है उसका हर एक बॉक्स का एक नाम हम लोग देंगे, एरे का एक नाम, और उसमें हम लोग डेटा इनपुट करेंगे तो उसमें जो आएगा वो वन डायमेंशनल एरे है. वन डायमेंशनल एरे में इट इज लिस्ट ऑफ वेरिएबल ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स. इट्स अलाउ रैंडम एक्सेस एंड ऑल एलिमेंट्स कैन बी एक्सेस्ड विद द हेल्प ऑफ देयर इंडेक्स. द साइज ऑफ एरे इज फिक्स्ड एंड फॉर ए डायनेमिक साइज एरे वेक्टर कैन बी यूज्ड इन C++ and represent 1D array. In two-dimensional array, two-dimensional array में क्या है? It is a list of the variable of the same data types, and it also allow random access and all the elements can be accessed with the help of their index. Same चीज होगा जो one-dimensional array में हम लोग करते थे वही होगा. And it can also be seen as a collection of 1D arrays. It is also known as the matrix. 1D array और 2D array में डिफरेंस क्या होगा? 1D array में रो और कॉलम जो है वो सिंगल वे में होगा, एक ही लाइन होगा. लेकिन 2D और मल्टी डायमेंशनल जो एरे है उसमें हम लोग क्या करेंगे? उसमें 2x2 मैट्रिक्स और 3x3 मैट्रिक्स इस तरीके के हम लोग यूज करेंगे.
they are all referred as a multi-dimensional array, and the most common multi-dimensional array is 2D array and represent of 2D array. The most common part multi-dimensional array में वो 2D array होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? हेलो, हाँ बोलो। सर, टू डायमेंशनल एरे को इनिशियलाइज और डिक्लेयर कैसे करते हैं? समझो हम लोग एक 2x2 मैट्रिक्स हम लोग अगर लेंगे तो 2x2 मैट्रिक्स में हम लोग क्या लेंगे? समझो ऊपर का जो है 2 4 और नीचे जो नीच में जो है वो 4 6, ठीक है। हम लोग जो मैट्रिक्स जो करते हैं, जो पाजल होता है, पाजल को हम लोग 2D और 3D एरे में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। समझो एक पाजल है तुम लोगों के पास, जो 1 से 9 तक एक बॉक्स में तुम लोग अगर 3x3 पजल तुम लोग करोगे, वो क्या 3D एरे में आ जाएगा। अगर 2D एरे आ जाएगा उसमें, उसको हम लोग डिफाइन ऐसे कर सकते हैं। समझो x के बाद हम बॉक्स में थर्ड ब्रैकेट जो है वो 0 और 1, ये मैं बाद में ब्रीफली डिस्कस करूंगे 2D एरे में कैसे हम लोग डिनोट करते हैं और उसका प्रोसेस क्या है। जस्ट मैं सिंपल वे में 1D 2D एरे में क्या होता है वो मैंने बोल दिया, ठीक है, तब ये समझ में आ जाएगा। और एक चीज है, अगले दिन अगले क्लास में तुम लोग जो बोले थे लीनियर सर्च और नॉन लीनियर सर्च, ठीक है। तो लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च ये भी दो चीज आते हैं, यूज होता है एरे में। तो वो चीज क्या है, लीनियर सर्च क्या है? Linear search is a basic and simple search algorithm. In linear search, we search an element or value in a given array by traversing the array from the start and till the desired element or value is found. हम लोग एरे में क्या होता है, एरे में एक डेटा टाइप है, ठीक है। डेटा टाइप में हम लोग एक डेटा टाइप को डिक्लेयर कर रहे हैं एरे में। फिर हम लोग अगर उस एरे में एक डेटा है या नहीं है, अगर हम लोग को सर्च करेंगे तो लीनियर और बाइनरी सर्च, ये सर्च एल्गोरिदम हम लोग यूज करेंगे। ये सर्च एल्गोरिदम अगर हम लोग बाद में जब ट्री डिस्कस करेंगे और ग्राफ हम लोग डिस्कस करेंगे, तो उसमें क्या है, पेरेंट्स और चाइल्ड होता है, पेरेंट्स का जो चाइल्ड नोट्स होता है, उस चाइल्ड नोट्स और कोई भी एक डेटा को हम लोग अगर सर्चिंग करेंगे तो उसमें क्या होगा, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च आ जाएगा, ठीक है। तो so in linear search is a very basic and simple search algorithm, okay, and in linear search we search an element or value in a given array by traversing the array from start and till the desired element or value is found. हम लोग एक पॉइंट से हम लोग सर्च करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, डीएफएस बीएफएस तुम लोग पढ़े हुए हो, वो तो डेटा स्ट्रक्चर में था। डीएफएस बीएफएस मालूम है? व्हाट इज डीएफएस? डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड ब्रेथ फर्स्ट सर्च। हेलो, ठीक से याद नहीं है, पढ़े हैं पर। ठीक है, वो बाद में डिस्कस करूंगा वो डिटेल्स में। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेथ फर्स्ट सर्च में क्या पॉइंट है वो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्या होता है, समझो एक ट्री में ट्री में एक रूट है, रूट में 3 उसका, तो यहाँ पर ये पिक्चर नहीं है, नहीं तो मैं समझो एक ट्री है, ट्री का 3 रूट नोड है, ठीक है। और समझो मैं समझो एक आदमी है, उसका फैमिली के में क्या है, 3 चाइल्ड है एक आदमी का। उस 3 चाइल्ड में क्या है, हर एक का 2 चाइल्ड है, ठीक है। तो उसमें अगर किसी वो 10 जो नंबर है उस फैमिली में, 10 और 20, हर एक का एक अलग सा नाम है और एक अलग सा आईडी है, ठीक है। अगर हम लोग कोई भी एक को सर्च करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से एक एक करके सर्च करेंगे सेम प्रोसेस में। तो वही होता है डीएफएस। और बीएफएस क्या होता है, बीएफएस
सर्चिंग प्रोसेस सेम है, लेकिन क्या होता है डीएफएस क्या होता है, एक साइट पे और सर्च कंप्लीट करेगा। समझो उसका एक पेरेंट्स है, उसका 2 चाइल्ड है, 2 चाइल्ड का फिर और 2 चाइल्ड है, उसका फिर 2 चाइल्ड है, ठीक है। तो इन बीएफएस क्या होता है, वो पहले पेरेंट्स को सर्च करता है, फिर उसका 2 चाइल्ड में सर्च होता है, फिर उन दो लोगों का जो चाइल्ड है उसमें सर्च होता है। लेकिन अगर डीएफएस हम लोग यूज करेंगे तो क्या होगा, उस पेरेंट्स का एक जो चाइल्ड है, एक चाइल्ड का जो चाइल्ड है वो एक साइड से सर्च होगा, ठीक है। तो इस तरीके के लीनियर सर्च में क्या है, अगर सर्चिंग टेक्निक स्टार्ट करेंगे तो सर्चिंग टेक्निक में हम लोग क्या करेंगे, उसमें टोटल सर्च करेंगे। कितना देर तक सर्च करेंगे, जितना देर तक हम लोग जो सर्च कर रहे हैं वो वैल्यू हम लोग को नहीं मिल जाता, उतना देर तक हम सर्च करेंगे लीनियर सर्च में, ठीक है। So it compares the element to be searched with all the elements present in the array, and when the element is matched successfully, it returns the index of the element in the array, else it returns -1. ओके, माने नेगेटिव, उसका रिजल्ट नेगेटिव आ जाएगा अगर वो सर्च नहीं कर पाएगा। लीनियर सर्च इज एप्लीकेशन ऑन अनसॉर्टेड और अनऑर्डर्ड लिस्ट व्हेन देयर आर फ्यूअर एलिमेंट्स इन ए लिस्ट। लीनियर सर्च हम लोग जो करते हैं उसमें हम लोग कब यूज करते हैं, जब एलिमेंट उसमें बहुत कम हो और उसमें हम लोगों का रिजल्ट मिल जाएगा, तो हम लोग एलिमेंट बहुत ज्यादा रहेगा तो उसमें हम लोग लीनियर सर्च यूज नहीं करेंगे, ठीक है। फिर फीचर्स ऑफ लीनियर सर्च एल्गोरिथम क्या है, इट इज यूज्ड फॉर अनसॉर्टेड एंड अनऑर्डर्ड स्मॉल लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, एक आ जाएगा। एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो हर एक सर्चिंग टेक्निक में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ए मोस्ट वैल्यूएबल पार्ट, ओके। मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एक सिंपल सा एग्जांपल देके बोल दूंगा, फिर बाद में हम लोग वो डिस्कस करेंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो लीनियर और जो बाइनरी में वो आएगा, लेकिन लीनियर और बाइनरी सर्च करने के लिए एक प्रोसेस हम लोगों को यूज करना पड़ता है, वो है कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हम लोग जो सर्चिंग एल्गोरिदम हम लोग यूज करेंगे वो सर्चिंग एल्गोरिदम कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, यही है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यहां से निकलता है, ठीक है। सो पहले देखो, पहले डेटा स्ट्रक्चर में रिलेटेड क्या है, एरे, एरे में क्या चीज आ रहा है, एरे में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एरे में जो सेम डेटा टाइप है वो हम लोग स्टोर करेंगे। तो पहले डेटा स्ट्रक्चर में क्या आ रहा था, डेटा स्ट्रक्चर था वो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव था। प्रिमिटिव में इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल ये यूज होता है, ये बहुत इजी है। इंटीजर क्या है मालूम है, कैरेक्टर क्या है मालूम है, फ्लोट क्या है और डबल क्या है। फिर नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है डेटा स्ट्रक्चर में, दिस इज नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर इज defined 2 types, one linear and another is non-linear, okay. And linear part, these are 4 types of structure we found. One is array, second stack, third queue and fourth linked list. And non-linear सर्च में हम लोग क्या, यहाँ पर क्या होता है, एक ट्री होता है और एक ग्राफ होता है। फिर हम लोग स्टार्ट किए हैं, तो एरे में क्या है, एरे में हम लोग क्या करते हैं, सेम डेटा टाइप का जो डेटा है वो हम लोग एक प्लेस पे हम लोग वो स्टोर करते हैं। तो वो स्टोर करने का प्रोसेस क्या है, उसमें क्या यूज होता है, 1 डायमेंशनल एरे यूज होता है और मल्टी डायमेंशनल एरे में 2D एरे और 3D एरे आता है। 1 डायमेंशनल एरे क्या होता है, अगर 1 कॉलम और 1 रो अगर वहां पर यूज हो और डेटा टाइप सेम हो, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, वन डायमेंशनल एरे हम लोग यूज करेंगे। लेकिन अगर जो कॉलम और जो रो है वो
मोर देन वन, अगर वो जो डेटा है वो अगर मोर देन वन हो जाए तो उसमें यूज करेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे। फिर लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च आता है, उसमें हम लोग कैसे सर्च करेंगे। लेकिन ये जो सर्चिंग टेक्निक है, हम लोग जो डेटा को अगर हम लोग सॉर्टेड करते हैं, सर्च करते हैं, तो उसमें क्या है, सर्चिंग टेक्निक हम लोग यूज करते हैं। सर्चिंग टेक्निक में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक यूज होता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों यूज होता है, क्योंकि अगर हम लोग कोई भी डेटा को सर्च करेंगे तो उसको सर्च करने में क्या टाइम लगता है, वो ज्यादा टाइम लगता है या कम टाइम लगता है, और क्यों ज्यादा टाइम लगता है, वो एक सर्चिंग एल्गोरिदम है, सर्चिंग टेक्निक है, वही मैं बोलूंगा। So, in time complexity is a concept in computer science that deals with the quantification of the amount of time taken by a set of code or algorithm to process or run as a function of the amount of input. Okay. In another way, we can say the time complexity is how long a program takes to process a given input, and the efficiency of an algorithm depends on two parameters. One, time complexity, and second is space complexity. Okay. So time complexity क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन सिंपल वर्ड हम लोग जो बोल सकते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज हाउ लॉन्ग ए प्रोग्राम टेक्स टू प्रोसेस ए गिवन इनपुट। हम लोग जो एक इनपुट प्रोग्राम में अगर हम लोग एक इनपुट देंगे तो वो इनपुट प्रोसेस होने में जितना टाइम लगेगा उसको ही हम लोग बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एंड इन अनदर वे हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज अ कॉन्सेप्ट इन कंप्यूटर साइंस दैट डील्स विद द quantification of the amount of time taken by a sets of code or algorithm to process or run as a function of the amount of input. Okay. So time complexity and space complexity. So what is time complexity? It is defined as the number of times a particular instruction set is executed rather than the total time is taken. Okay. So एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के लिए कितना टाइम कंज्यूम करता है, वही मेन पॉइंट है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। इट इज बिकॉज द टोटल टाइम टू took also depends on some external factors like the compiler used, processor speed. Okay. So we can also say it is depend as the number of time a particular instruction set is executed rather than the total time is taken. It is because the total time took also depends on some external factor like the compiler used and processor speed. Okay. And space complexity क्या है? Space complexity, it is the total memory space required by the program for its execution. Execution के लिए total कितना स्पेस रिक्वायर्ड होता है एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए, वही है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। नाउ वी डिस्कस द थ्री फैक्टर ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में जो थ्री फैक्टर है उसको हम लोग क्या करते बोलते हैं, वर्स्ट केस, एवरेज केस और बेस्ट केस। ठीक है। इन we discuss how to complete a program and how time taken in this program. So we can three cases to
analyze an algorithm. One is worst case, second is average case, and last is best case. अगर हम लोग एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे और समझो अगर हम लोग एक डेटा को सर्च करेंगे कोई भी प्रोसेस में, तो उसमें क्या होता है, तीनों चीज आता है। एक क्या होता है, एक बेस्ट प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में हम लोग उस डेटा को फाइंड कर सकते हैं, और सेकंड क्या आता है, एवरेज केस में क्या आता है, एवरेज केस में वो हम लोग जो एक डेटा को उसमें फाइंड कर रहे हैं वो क्या है, एक आंसर तो एक रिजल्ट तो आ गया, लेकिन वो रिजल्ट क्या है, अच्छा भी नहीं है और बुरा भी नहीं है, वो एक बीच में है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज केस। एंड ओट्स केस क्या है, ओट्स केस देखो एक सिंपल सा एग्जांपल से मैं ओट्स केस बोल रहा हूं। समझो हम लोग एक डेटा को सर्च कर रहे हैं, लेकिन वो सर्च कर वो मैंने क्या बोला था, इन डीएफएस देयर आर टू पार्ट्स, वन इज लेफ्ट एंड वन इज राइट। अगर हम लोग सर्चिंग टेक्निक स्टार्ट कर रहे हैं और जो राइट हैंड है, राइट हैंड में हम लोग सर्च कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो सर्चिंग जो रिजल्ट है वो लेफ्ट पार्ट में है, तो हम लोग क्या करेंगे, राइट पार्ट में हम लोग सर्च करेंगे, लेकिन उसमें क्या है, कोई भी आंसर नहीं मिलेगा, उस और लेफ्ट पार्ट में है। ये मैं नेक्स्ट क्लास में एक ड्राइंग के थ्रू मैं डिस्कस करूंगा। अगर ड्राइंग के थ्रू मैं डिस्कस करूंगा तो वो समझ में आ जाएगा कि बीएफएस और डीएफएस क्या होता है, और बीएफएस में ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में वर्स्ट केस, एवरेज केस एंड बेस्ट केस कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। So हाँ बोलो। what is time space trade-off? So what is time space trade-off? टाइम स्पेस Time स्टेट space. मतलब, हाँ ठीक है, व्हाट इज टाइम स्पेस स्टेट, टाइम स्पेस स्टेट मतलब क्या है, हम लोग जो प्रोग्राम करते हैं उस प्रोग्राम करने में कितना मेमोरी एलोकेट होता है, ठीक है। अगर हम लोग अगर सिंपल वे में हम लोग बोलेंगे, इट इज द टोटल मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड बाय प्रोग्राम फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। ओके, कोई भी एक प्रोग्राम क्या है, कम मेमोरी एलोकेशन में हो जाएगा, और कोई एक प्रोग्राम है जिसका मेमोरी एलोकेशन, हेलो, Yes, sir. उसका मेमोरी एलोकेशन बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। अगर मेमोरी एलोकेशन ठीक तरीके से हम लोग नहीं करेंगे तो वो प्रोग्राम एरर आ जाएगा, वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसमें उतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेके हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में तीनों चीज आता है, देयर आर थ्री टाइप्स, one is worst case, second is average case and the most is best case। तो worst case में एक प्रोग्राम अगर हम लोग और एक सर्चिंग अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो वो worst case में कैसे पड़ता है, माने कैसे worst case में वो इंटर होता है, कैसे वो एवरेज केस में होता है, और वो कैसे बेस्ट परफॉर्म करते हैं, वो हम लोग बीएफएस और डीएफएस जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च है और जो डेप्थ फर्स्ट सर्च है, उस दो सर्च में हम लोग मालूम हो जाएगा कि उसमें कैसे हम लोग एक लूप में, अगर हम लोग एक प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, अगर उस प्रोग्राम एक लूप के अंदर फॉर लूप समझो, फॉर लूप में कोई भी ऐसा डेटा हम लोग यूज करें जो डेटा का एक इंफिनिटी है, सर्चिंग इन तक उसका जो चाइल्ड नोड्स है, चाइल्ड नोड इन तक है, और वो एक सर्च कर रहे हैं लेकिन वहां पर उसका सर्चिंग जो रिजल्ट है वो नहीं मिल रहा है, तो वो तो एक वर्स्ट केस में आ जाएगा, क्योंकि वो जो रिजल्ट है वो उनको मालूम नहीं पड़ेगा कि रिजल्ट क्या है। तो इसलिए वो तीनों चीज वो है, वो मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में। और क्या है देखो, एरे में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गया, एप्लीकेशन ऑफ एरे। ओके, एप्लीकेशन ऑफ एरे में हम लोग एरे क्या कहां पर यूज करते हैं, 2D एरेज आर यूज टू इम्प्लीमेंट मैट्रिक्स। मैंने पहले ही बोला था, एरे जो मैं मल्टी डायमेंशनल एरे जो डिस्कस कर रहे थे जब, तो मैं क्या बोला था, हम लोग जो मैट्रिक्स यूज करते हैं, समझो 2 into 2 मैट्रिक्स,
और 3x3 मैट्रिक्स। ओके, तो वो जो मैट्रिक्स हम लोग यूज करते हैं, वो मैट्रिक्स यूज करने के लिए एरे हम लोग यूज करते हैं। एरे कैन बी यूज टू इंप्लीमेंट वेरियस डेटा स्ट्रक्चर लाइक हीप, स्टैक, क्यू। स्टैक क्यू में हम लोग क्या करते हैं, उसमें भी हम लोग एरे यूज करते हैं। स्टैक क्यू में क्या है, हम लोग डेटा लास्ट इन लास्ट आउट, लास्ट इन फास्ट आउट, लीफो और फीफो हम लोग यूज करते हैं। लीफो फीफो में जो जब हम लोग यूज करते हैं, अगर उसमें एक ही रो और एक ही कॉलम हम लोग अगर यूज करें, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, 1 डायमेंशनल एरे हम लोग यूज करेंगे। अगर उसमें मैट्रिक्स आ जाएगा तो उसमें क्या आ जाएगा, 2 डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल एरे हम लोग यूज करेंगे वहां पर। दे अलाउ रैंडम एक्सेस एंड दे आर कैशे फ्रेंडली। इसमें क्या है, कैशे फ्रेंडली है, कैशे में इसमें प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आज जो टोटल हम लोग डिस्कस किया, 1 डायमेंशनल एरे क्या है, 2 डायमेंशनल एरे क्या है, एंड और एक चीज यहाँ पर देखो, अगर हम लोग यहाँ पर द डिफरेंस बिटवीन 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल एरे अगर हम लोग डिस्कस करें, तो उसमें क्या आएगा, बोलो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल एरे? बोल सकते हो? What is the difference between 1 dimensional and 2 dimensional array? In 1 dimensional array, we can say store a single list of element of a similar data types, and 2 dimensional array में हम लोग क्या बोलेंगे, store a list of list। यहाँ पर सिंगल लिस्ट होता है, वहां पर क्या होता है, लिस्ट ऑफ लिस्ट, वहां पर ये एलिमेंट स्टोर होता है। और हम लोग क्या बोल सकते हैं, in 2 dimensional array, size of data types of variable of array, size of the array, and in 2 dimensional array हम लोग वहां पर क्या बोलेंगे, लिस्ट ऑफ लिस्ट। मतलब वहां पर हम लोग एक से ज्यादा वहां पर यूज होगा, जो डेटा है वो यूज होगा, ठीक है। एंड इसमें और एक represent in 1 dimensional array represents multiple data items as a list. That declaration varies of different programming language, and in 2 dimensional array represent multiple data items as a table consists of row and column, and the declaration varies for different program language. यहाँ पर क्या होगा, रो एंड कॉलम सिंगल यूज में आएगा 1 डायमेंशनल एरे में, और 2 डायमेंशनल एरे में वो एक मैट्रिक्स में आएगा, यही डिफरेंस है। और आज तो एरे में एरे डिस्कस किया हूं, तो उसमें एक चीज जो रह गया वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कल जो क्लास है, कल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड लीनियर और बाइनरी सर्च का थोड़ा सा और ब्रीफली हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस नहीं करेंगे तो लीनियर और बाइनरी सर्च में कैसे हम लोग सर्च करते हैं वो मालूम नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने वो नहीं बोला, वो बाद में हम लोग